been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face go back and take your those seat. who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. You all take your seat. You all take your seat, then only I will ask him to speak. If you all take your seat, then I will ask him to speak. Sir, Mike, sir. Sir, thank you very much, sir. Sir, I crave the indulgence of all the members cutting across the party lines. This is not a partisan issue, it's a bipartisan issue. Sir, we have a parliamentary democracy based on multi-party system. Yesterday, an unfortunate incident happened. A Delhi police team barged into the headquarters of CPM, which is a national political party. You know that, sir. Camera not showing, sir. Why are they camera playing like this? No. You address to me. You address to me, Sir. You address to me. Sir. Yesterday, Delhi police team barged into AKG Bhavan. You have huge respect. You have told many a time respect for AK Gopalan. Sir, it was to arrest Aishi Ghosh, Madam Nirmala ji, who is a former JNU Students Union president. Her only mistake was that she participated in Jantar Mantar agitation. Leave it, sir. Sir, I happen to be there, sir. I want your indulgence. Yashankar ji, you also should. I happened to go there. I asked the Delhi police team, why did you barge into the office of a national political party? Then they said they want to arrest Aishi Ghosh, who is here. And I asked, what is the reason? They said there is a case pending against her. And I asked about the case. 2021 case with regard to certain protests in JNU campus. Sir, then I told them, sir, please listen. Sir, this is a... Arey, Shramik, please. Sir, this is a bipartisan issue. I have no problem in Delhi police. I have no problem Delhi police have. Sir, the shocking thing is that they came without uniform. Now you conclude. Sir, now 1997 Act. SOP of Delhi police. The Delhi police has to be identified. My demand is that they want to send the fear across the youngsters. Now you conclude. I want a statement from the Honorable Home Minister as to what has happened. Rajiv Bhattacharya ji. Now, Shriman Rajiv Bhattacharya ji. माननीय सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी का एक राज्य है त्रिपुरा, जो पिछले सरकार द्वारा शासित कांग्रेस और सीपीएम ने बहुत सालों से ये शासन किया है। आज जिन्होंने जयंती की बात कर रहे हैं, उनका रोजगार क्या होगा, साधन क्या होगा रोजगार का? ये कांग्रेस और सीपीएम का सरकार रहते हुए कुछ सुधार नहीं हुआ। और 2014 से आजादी के बाद से मोदी सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में खास करके त्रिपुरा की आम जनता हो,
जनजाति क्षेत्र हो, मोदी जी ने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा। All agreed not to disturb hour and question hour. But you are not keeping your मैं word. आपके माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ। Let him complete. Please let him त्रिपुरा complete and come में back to you. 30% जनजातीय क्षेत्रों का जनजातियों का बास है। इसमें मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री जातीय Coming back to him. Why you आदिवासी न्याय अभियान, Let him complete राष्ट्रीय that. आधार, I already called his name. I am coming back to him. त्रिपुरा में You स्टार्ट please हो take गया your seat. I will come back. जनजाति जुबा को खड़ा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार के पास अपील करना चाहता हूँ कि Oh, this is not correct. You त्रिपुरा should not में disturb the speech of जनजाति other member. जो I am जुबा coming है back to him. You please इनके लिए take your seat. रेसिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट एंड I am एम्प्लॉयमेंट coming back to सेंटर him. You बने should take- जो you should not take बॉडी your seat. ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से ये त्रिपुरा की जनजातियों का जो युवा है इनको रोजगार मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट में इनको प्रोत्साहित करने का एक संकल्प होगा। हाल ही में हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात, जो जनजातियों का असली और त्रिपुरा को दिखाने का काम अभी मन की बात अनुष्ठान में त्रिपुरा जनजातियों का एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेन प्रो, ये सरोज देववर्मा को प्रोत्साहित किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस और सीपीएम का बहुत सालों से त्रिपुरा में सरकार थी, तब युवाओं का कुछ नहीं किया। ये मोदी जी आने के बाद त्रिपुरा में युवा जनजातियों का सबका उन्नयन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू भाई साहब। Now, madam, I know na, why you are recommending. I know LOP very well. Why you are recommending, I am doing it. Now, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के, अगर सीबीआई के लोग, पुलिस ये घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in the. No, I'm asking, who asked them to go there? Now, Who ordered? now the honorable leader of the house, That now is the not leader of the the house will reply. That is not the Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, Let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir. Let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now the leader of the house. Whatever my friend, sir, what my friend John Bitas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bitas, it is a normal situation. A student activist has to face Go back and take your those seat. who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji,
want to speak, whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I am calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue ಇಲ್ಲ. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज सेकंड का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया, ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय से बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना देते तो यह समस्या नहीं होती। जयवीर सिंह जी, नाउ श्रीमान जयवीर सिंह जी। थैंक यू सर। सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा शक्ति का निर्माण करना है, किंतु अनेक सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण अथवा अन्य उपयोगों के कारण वो समाप्त होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थी खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभाओं के उभरने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान प्रारंभ किया जाए।
प्रत्येक सरकारी विद्यालय में खेल मैदान का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए तथा खेल अवसंरचना के विकास हेतु विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये पहल न केवल बच्चों के अधिकार को सशक्त करेगी बल्कि विकसित भारत के निर्माण के एक स्वस्थ अनुशासित I will not allow anybody to get into the well. If anybody gets into the well, तैयार करने में भी if anybody gets into the well, that will be taken as serious. You have your right to object from your seats. And Dr. Lakshmikant Vajpayee ji, माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ये विषय देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी रिक्त अनुपयोगी भूमि को सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं में स्थापित करना है और एक सोलर करने से केंद्र सरकार निकायों की हजारों एकड़ भूमि रिक्त होने की संभावना रहती है। दूसरी ओर देश ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि रिक्त सरकारी भूमियों का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाए तो ये भूमि राष्ट्र निर्माण में का माध्यम बन सकती है। महोदय, सोलर पार्क और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं संचालित हैं, लेकिन सोलर टाउन और शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। ये गंभीर नीतिगत कमी है। इसके कारण आज करोड़ों लोग जो बहुमंजिली इमारतों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में और झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास अपनी छत नहीं है, इसलिए वो रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। क्या स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा केवल उन्हीं नागरिकों का अधिकार है जिनके पास छत उपलब्ध है? विश्व के अनेक देशों में कम्युनिटी सोलर मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है। भारत भी इस दिशा में नेतृत्व कर सकता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्त पड़ी भूमि का सर्वेक्षण करा के राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाए। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित किए जाए। पीपी मॉडल डिस्कॉम और सहकारी समितियों और स्थानीय निकायों की भागीदारी से एकीकृत नीति बनाई जाए और एक जिला न्यूनतम एक सोलर टाउन योजना लागू की जाए। राजस्व की साझेदारी की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे स्थानीय निकायों को स्थायी आय की प्राप्ति हो सके और उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और नागरिक सुविधाओं के लिए हो सके। माननीय सभापति महोदय, ये विषय केवल बिजली उत्पादन का नहीं है, ये ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार, नगरीय निकायों की आर्थिक सुदृढ़ता एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, इस दिशा में व्यापक राष्ट्रीय नीति और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। धन्यवाद। now the house adjourned to meet at 12 noon. আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।